Hello, my dear students. Welcome to mathematics class with your Ashu ma'am. Dear students, we are doing Unit 7 Triangles of your NCERT book. Until now, we have completed 7.1 exercise. Now, today we are going to start with 7.2 exercise. So, let's start. Now, dear students, before starting our next exercise, that is 7.2 exercise, let us go through some of the properties of triangles given to us in the book. Like, we must know isosceles triangles means a triangle whose any of the two sides are equal. So then we must focus on theorem 7.2, which says that angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. Means if any triangle is isosceles, like this is an isosceles triangle, and if I say that side AB is equal to AC, means these two sides are equal, then the angles opposite to these sides are also equal. Like AB साइड के अपोजिट थर्ड ट्राइंगल अगर हमारी ABC है और एंड वी आर इन्वॉल्विंग AB साइड, देन विच इज़ द थर्ड लेटर लेफ्ट? C. मीन्स AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? C. And AC, if side AC is there, which letter is left? B. मीन्स AC के अपोजिट एंगल है B. और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि AC के अपोजिट एंगल भी. मीन्स इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, दैट मीन्स the angles opposite to the two sides are also equal. So this is the theorem, this is the concept which we are going to use in our upcoming exercise. And after that, dear students, one more theorem 7.3 is there. The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. Means this theorem is just opposite to the previous theorem, vice versa. Means if in a triangle any two angles are equal, like angle B is equal to C, this time एंगल्स आर इक्वल. पिछले में हमें साइड्स इक्वल दी थी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो वहाँ से मिला था कि एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. बट नाउ इफ़ एंगल्स आर इक्वल देन विल गेट द इक्वल साइड्स. तो अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे. सो इफ़ वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी एंड बी एंगल इज इंक्लूडिंग बी है, तो साइड कौन सी लिखेंगे? ए सी. Side is AC, and if C angle is there, then the side is AB. Means B के अपोजिट साइड AC और C के अपोजिट साइड AB, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. सो द two theorems, I hope the concept is clear to you. Means in an isosceles triangle, if two sides are equal, then the angles opposite to the equal sides are equal, and vice versa, that if two angles of any one triangle, and remember this is the concept only for one triangle, दो triangles अलग अलग में ये अप्लाई नहीं कर सकते कि दो एंगल इक्वल हैं अलग अलग ट्राइंगल के, तो साइड हो जाएंगे. So if two angles are equal, then the sides opposite to equal angles are also equal. So now let's start with 7.2 exercise. Now dear students, question number 1 of 7.2 exercise is in an isosceles triangle ABC with side AB is equal to AC. I want to make this figure in front of you only. Like if this is an isosceles triangle whose name is ABC, and they are saying its two sides AB and AC, these are equal, then what is given to us? The bisectors. First thing given to us is that these two sides are equal. Then the bisectors of angle B and C intersect at O. तो एंगल B का बाइसेक्टर मीन्स जो इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, मीन्स ये मैंने बना दिया. एंगल C का बाइसेक्टर मीन्स जो एंगल C को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो ये वाली लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. दे आर सेइंग दैट द बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, एंड दीज टू angles, small angles are equal, and these two small angles are equal, right? So what else is given to us? Join A to O, then we must join O point को हमें join करना है किससे? A से. तो हम ये join कर लेते हैं. Let us join it. Then show that OB is equal to OC. Now our target is to prove this side is equal to this. और ये दोनों साइड्स किस ट्राइंगल में आ रही हैं? इस ट्राइंगल में OBC में. तो अगर हम दिखा दें कि इस OBC ट्राइंगल का ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल इक्वल हैं छोटे वाले, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल यहाँ भी शो कर देंगे हम, राइट। एंड देन वी हैव टू प्रूव AO बाइसेक्ट्स A एंगल, मीन्स हमें प्रूव करना है ये सेकंड पार्ट में ये एंगल इसके इक्वल है, मीन्स AO जैसे हमारे पास OB और OC बाइसेक्टर है उसी तरह से OA बाइसेक्टर एंगल A का, मीन्स वी नीड टू प्रूव दीज टू एंगल्स इक्वल. नाउ लेट अस नंबर ऑल द एंगल्स 1 2 3 4. नाउ टू प्रूव फर्स्ट पार्ट दैट दीज टू साइड्स इक्वल, हम अगर 2 और 4 को इक्वल दिखा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा. नाउ हाउ टू प्रूव दिस, तो सबसे पहले हमें गिवन था AB is equal to AC. Let me make the figure once again separately to show you the things. Now if AB and AC, these two sides are equal, then by theorem number 7.2 the angles opposite to equal sides are equal. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, that angle B is equal to angle C. ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे. और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, मान लो 9 ये हैं 60 डिग्री के हैं दोनों एंगल, तो हम बोल सकते हैं बेटा कि उनका हाफ भी इक्वल होगा. लाइक अगर मैं इस दोनों का हाफ ले लूँ तो वो कितना आएगा 30 डिग्री, मीन्स वो भी इक्वल हो जाएगा. तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ये पूरा का पूरा एंगल ABC इज इक्वल टू ACB, यहाँ से इक्वल आ गया. उसके बाद अगर ये पूरा B एंगल C के इक्वल है तो उसका हाफ भी क्या हो जाएगा इक्वल, मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू 4 वी कैन से. और फिर हम आएंगे अपने ट्राइंगल OBC में कि अगर OBC ट्राइंगल का एंगल 2 और 4 इक्वल हैं तो अब हम 7.3 थ्योरम यूज़ करेंगे कि इफ़ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू 4 मीन्स OB and the side opposite to angle 2 means OC are also equal. So in this way we will be able to prove first part equal. Now to prove these two angles equal means OA bisector, हम इन दोनों triangles को क्या prove कर देंगे congruent. How we can prove them congruent? Like in the first part we have OB is equal to OC, अभी हमने prove किया यहाँ पर, and OA is common and AB is equal to AC given. तीनों साइड इक्वल शो कर दी. ये OA इस ट्राइंगल में भी है, इसमें भी, ये दोनों इक्वल हो गए. OB इज इक्वल टू OC हमारे फर्स्ट पार्ट से मिल गया हमें, और AB इज इक्वल टू AC गिवन है. मीन्स हमने तीनों साइड्स को, इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स को इक्वल दिखा दिया इसके. सो देयरफॉर बाय ट्रिपल एस प्रॉपर्टी दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस एंगल 5 इज इक्वल टू 6 भी मिल जाएगा हमें. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ लेट अस सी हाउ टू राइट. सो डियर स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट राइटिंग. लाइक सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, OB इज इक्वल टू OC, तो हम लिखेंगे एज AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है. दिस इम्प्लाइज, हम पहले ट्राइंगल का नेम मेंशन करेंगे बिकॉज वी आर हैविंग 2-3 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर, तो वी मस्ट रहेंगे इन ट्राइंगल ABC means we are talking about the bigger triangle ABC. As AB is equal to AC, this implies angle B is equal to angle C. Means ये दोनों एंगल इक्वल हैं. रीज़न देंगे angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides are also equal. Are also equal. तो यहाँ से ये आ गया, दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C. जैसे कि मैंने एग्जांपल समझाया था, अगर दोनों 60 के हैं तो उनका हाफ 30 भी इक्वल होगा. और एंगल B का हाफ हम किसे लिख सकते हैं, 2 को या 1 को, बट 2 चाहिए हमें इस ट्राइंगल में. सो दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू, और C का हाफ या तो 3 या 4 हो सकता है, तो हम 4 को लिखेंगे. दीज टू आर इक्वल. ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज दिस, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, अब यूज़ करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को अपनी दूसरी ट्राइंगल में, एंड वी विल मार्क दिस एज 1. नाउ इन ट्राइंगल OBC मीन्स स्मॉलर ट्राइंगल OBC एज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और ब्रैकेट में लिखेंगे ये कहाँ से आया, यूजिंग 1 और फ्रॉम 1. Angle 2 is equal to 4. This implies OB side
4 के अपोजिट OB और 2 के अपोजिट OC is equal to OC. And again we must write the reason. So now sides opposite to, now we will write, यहाँ angle थे opposite, यहाँ sides opposite to equal sides are equal. So this is your first part. Now let us do the second part. सेकेंड पार्ट में मैंने क्या बताया आपको, 2 ट्राइंगल्स लेके काम करना है हमें, क्योंकि जिन ट्राइंगल्स में वो पार्ट्स इंक्लूडेड हैं उसके हिसाब से हमें काम करना है. सो लेट अस डू द सेकेंड पार्ट नाउ. लेट मी रब these 2 parts now and let us do the second part here. So in second part we will take in triangle OBC, AOB and triangle AOC. What can we write? We can use SAS property also, dear students, if you can see. क्योंकि 1 और 3 भी हाफ ऑफ एंगल है, वो इक्वल होंगे, बट वी आर यूजिंग OA इज इक्वल टू OA कॉमन, देन OB इज इक्वल टू OC. ये कहाँ से मिला? प्रूव्ड अबव, ऊपर सेकेंड पार्ट में प्रूव किया है हमने, चाहे हमने साइड में किया बट इसे अबव ही लिखा जाता है. एंड देन AB इज इक्वल टू AC, द थर्ड साइड गिवन. सो क्योंकि हमने तीनों साइड्स का इस्तेमाल किया है तो वी कैन राइट देयरफॉर बाय SSS ट्राइंगल AOB is congruent to triangle AOC. So this implies what? Angle 5 is equal to angle 6 by CPCT. So this implies OA bisects angle A. Hence proved. So this is what we have to prove. Thank you, my dear students. Now try second question once yourself.